नमस्कार, द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में पूजा धर जी को इनवाइट किया है, जो MCA MA सोशियोलॉजी हैं। शी इज डन B.Ed and she is working as TGT Social Science at विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा। तो पूजा जी, आपका द राइट कॉन्वर्सेशन में स्वागत। थैंक यू सो मच भारती मैम, एंड थैंक यू राइट कॉन्वर्सेशन for trusting me and calling me here. I would like to ask you, Pooja ji, about your roots. आप कहाँ से belong करती हो? I belong to Kashmir. I'm Kashmiri Pandit, and I was born there in district Anantnag, एक छोटी सी place है, very beautiful place known as Kokarnag. I was born there, and then we migrated from there, and I completed my high school in Channi, private school there, and then my 11th and 12th from Government Girls Higher Secondary School, Mubarak Mandi, Jammu, and after that I completed my graduation, BSc, from Government Women's College in Gandhinagar, and the rest of my studies from University of Jammu. Jammu. Yeah. And when were you married? Were you married in Jammu? Yeah. Yes, I was married here in Jammu to a Kashmiri guy in 2011, and then we shifted to Noida for job and all. So were you in a job in Jammu, or you did your job in Delhi? Earlier, I was working as a teacher, general line teacher here in Government of Education Department here in J&K, but I left, and then we shifted in Noida. You shifted to Noida and you joined a school there. Vishwa Bharati. Yes. After that, I joined. After 1 year, I joined Vishwa Bharati Public School Noida as a TGT Social Science, and till now I'm working there. I would like to ask you, एक जरूरी बात है, difference between teaching in your own state and teaching in Noida. Well, actually, there is difference because Jammu is a small city, and Noida is NCR. So difference तो है. But yes, for me, for students, it is really like we can say कि एक बहुत अच्छा platform मिलता है हमें भी सीखने को, like हमें exposure मिलता है, and students को, like interacting with different teachers, with intellectuals, with professionals. Workshops होता है, CBSE का होता है, and we are really working, and there is lot of difference between education system of a state and working under CBSE. Okay. You see, we are celebrating now International Women's Day on the 8th of March, and for that, क्या है कि women को एक empowerment के बारे में हम उसकी बात करते हैं। वी एप्रिशिएट अ वुमन दैट डे, 8th को हम करेंगे, और हमारा नेशनल डे जो था उस पे भी वीमेन को बुलाया जाता है। वी कॉल देम, वी फेलिसिटेट देम एंड ऑल दैट। वी आर गिविंग टू मच ऑफ इम्पोर्टेंस। डू यू थिंक कि ये चलते रहना चाहिए कि ये सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए? No, ये तो चलता ही रहना चाहिए, because it's not only one day that women is working, and we should like कि हम women को याद करें because of her contribution or no, women is working 24/7 for family only. क्या उनको कोई छुट्टी मिलती है? संडे कोई छुट्टी नहीं है उनके लिए, तो नहीं है, डबल काम होता है। बिल्कुल, it's like छुट्टी हॉलीडे है, गेस्टेड हॉलीडे है for working class, but it's not holiday for a woman. ज्यादा जैसे आपने कहा डबल काम करना पड़ेगा. So we should remember women, rather we should encourage women every day, for every second. Yes, you have to work, you can, you will. ठीक है, आपको मतलब शक्ति का रूप हो आप, तो you can, तभी तो कर सकती है ना वो. She can give birth, she can do household works, she has many roles to play, तो वो कर सकती है, इसीलिए उसके पास है. तो उनको अपने टैलेंट को, अपनी जैसे इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए. सो फॉर दैट everyone, it's duty of everyone, right from the family, from father, from brother, चाहे वो husband है, हर एक मेल स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए.
एनकरेजमेंट होती है, एनकरेजमेंट होती है किस चीज के लिए, कि ये वाला काम तुमने किया, इसको किया, वो किया, और अगर कहीं पे चूक हो गई, कहीं आप चूके, तो उस टाइम क्या होता है? ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों हुआ ऐसा? अभी मैंने कहा था ये काम करने को, आपने नहीं किया. दैट इज नॉट एनकरेजमेंट, दैट इज जस्ट टू शो हर कि तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें करना था, क्यों नहीं किया. बट ठीक है, आई मीन टू से दैट वो करना है काम, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी इंटरनली उसको क्या चाहिए, वो किसमें खुश है, व्हाट कैन शी डू, वो बहुत जरूरी है. और वो एक फैमिली से आता है. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन घर से आती है, इजंट इट? स्कूल इज सेकेंडरी वन. इसी तरीके से फॉर दोज जिनके घर में लाइक कोई प्रॉब्लम है, लाइक एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, दे कांट अलाउ देयर विमेन फोक टू मूव आउटसाइड, तो उनको एनकरेज करना बहुत जरूरी है. बिकॉज दिस इज हाई टाइम नाउ फॉर आवर स्टेट, यूनियन टेरिटरी और फॉर आवर कंट्री, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ हिडन टैलेंट. आपने देखा होगा लाइक आई हैव सीन राजस्थान में वो बास्केट मेकिंग, वीविंग, हैंडीक्राफ्ट का आजकल बहुत ज्यादा. आई एम नॉट सेइंग दैट दे कैन वर्क इन आईटी सेक्टर, दे हैव टू वर्क देयर इन पढ़ना ही है या पढ़ाना ही है, ऐसा कुछ करना है. नो, जो भी उनका टैलेंट है, जो वो कर सकती हैं, एंड फॉर दैट दे कैन अर्न मनी. मनी को अर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट कि विमेन देन वो भागेगी पैसे के पीछे एंड देन शी विल लीव फैमिली एंड ऑल बिहाइंड. नो, बट पैसा एक कॉन्फिडेंस लाता है. तो जैसे बास्केट हमारे यहाँ पे मतलब नोएडा हाट में हाट लगता है, तो मैंने वहां देखा है कि गांव की जो विमेन है वो आती हैं, उन्होंने वो बैम्बू या पता नहीं क्या है वो घास टाइप होता है, उसमें वो कुछ डिफरेंट चीजें वो बनाती हैं एंड देन दे स्टॉल लगा के वो बेचती हैं. दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. तो उस चीज को एनकरेज करना है. लाइक हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में विमेन पापड़ बनाती हैं, पिकल्स, व्हाटएवर, जो भी उनका टैलेंट है, सो दैट दे कैन अर्न, दे कैन इंटरैक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो बस चार दीवारी के अंदर कन्फाइंड ना रहे. अभी हमने कोविड के टाइम में देखा है, जैसे फार्मिंग विमेन ने किया है. राजस्थान में हमने देखा है, दे केम फॉरवर्ड एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना जो कि है इनकरेज करते हैं विमेन को. और इस चीज का जो कि है हर एक घर में प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हर एक विमेन का एक टैलेंट, हिडन टैलेंट जो कि कम, इट केम आउट इन कोविड टाइम. कोई भी हमने नहीं ऐसी औरत देखी जिसने कुछ न कुछ किया हो. जरूर मे बी इन द लिटरेरी फील्ड, ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एवरीवेयर दे हैव एक्सेल्ड. एंड मेन को ने जो कि है मजाक तो विमेन का बहुत बनाया जाता है कि तुम क्यों नहीं करोगे, सफाई करो, बर्तन साफ करो एंड ऑल दैट. बट एक्चुअली जो विमेन एम्पावरमेंट है, दैट इज समथिंग एल्स. Yes. And what are your views about it? Yes, that is something else. As I was talking to you about this, कि ये बहुत जरूरी है. एंड आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज रियली एनकरेजिंग. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आजकल हर जगह पे लगा हुआ है, जस्ट टू एनकरेज और काम देना इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन डिफरेंट लाइक वी कैन से कॉटेज इंडस्ट्रीज में, या लाइक यू सेड कि या वी हैव सीन ड्यूरिंग कोविड डेज कि दे वर डूइंग फार्मिंग, लाइक व्हेन दे फैमिली के पास पैसा नहीं है, वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, दे बिकेम बैकबोन. तो रियली हमें उस चीज को समझना चाहिए. हमें क्या, मैं कह रही हूँ उन लोगों को जो इस चीज को डिस्करेज करते हैं उनको समझना चाहिए कि टफ टाइम में women only came forward and they protected their families. Yes, exactly. Yeah, exactly. And education wise, I would add, since you are an educationist and you are in NCR, और आपने जो किया बहुत बच्चों को देखा है, बहुत बच्चों को देखा है, and especially the girl child. You have seen them, you have been encouraging girls in schools, in every field the girls are being encouraged. And अपनी स्टेट में जो हमारी कम्युनिटी है, मैं ये कहूंगी कि हम लोग लड़कियों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. How do you relate that? Like we didn't discriminate. Yes, that's why we are 100% literate community, isn't it? So discrimination is there.
in rest of the states. It is there, but right now I'm saying that it's now confined to remote areas only. And they need encouragement, they need real like empowerment. अभी मेरे स्कूल में भी सब बच्चे पढ़ते हैं, इवन शिक्षा केंद्र हमारा एक लाइक इट्स नॉट आवर्स, इट्स एक्चुअली द प्रोग्राम ऑफ सीबीएसई एंड ऑल. वो शिक्षा केंद्र के जो बच्चे होते हैं जो कि पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको हम 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन तक फ्री पढ़ाते हैं. वेरी गुड. 12 चाइल्ड वो हम करते हैं. इवन आफ्टर दैट अगर वो मेरिटस स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप के लिए she is eligible for scholarship, तो then हम लोग उसको मे बी 9th 10th 11th 12th फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी पे उनको पढ़ाते हैं. दैट वी आर डूइंग. एंड लाइक दिस इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है अटेंडेंस भी बढ़ा उन बच्चों का जो नहीं लाइक दे कांट एफर्ड, दे कांट गिव फीस. वेरी नाइस. ओके, तो ऐसा होना चाहिए, स्पेशली इन रिमोट एरियाज. एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट होल कंट्री एक्सेप्ट साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया इज वेल दे आर लिटरेट. हम उनकी तो मतलब वी कांट कंपेयर साउथ इंडिया, बट स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, इन रिमोट एरियाज हमें तो लोगों को समझाना है कि गर्ल्स विमेन दे आर नॉट कन्फाइंड टू लाइक चूल्हे के सामने बैठना है, खाना बनाना है, नो. शादी करनी है एक छोटी एज में, एक टेंडर एज में, नो. वो आगे बढ़ना है. यू हैव टू फाइंड आउट हिडन टैलेंट. सबसे पहले तो स्कूल भेजो, पढ़ाओ, एंड देन फाइंड आउट हिडन टैलेंट. वट एवर टैलेंट होगा उसको बाहर लाओ. Like I discussed with you about small scale industries, right. About like papad making, pickle making. इसमें भी आप यूज कर सकते हो. If you are not like able to, आप बाहर मेन के साथ उनको नहीं इंटरेक्ट करना है, बिल्कुल आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप यू कैन जस्ट फाइंड वे आउट ऑफ इट. तो आप वैसे भी कर सकते हो. एंड दैट रियली वी हैव टू डू दैट. अभी हम कर भी रहे हैं, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग, बट स्टिल वी हैव टू डू a lot. Yes, you are right, Pooja ji. We have to do a lot, and we as women should also encourage the other women who are less fortunate in life. Thank you very much, Pooja ji, for being with us. And you will be pleased to know that we are celebrating on 8th of March in Kale Cycle Hall the International Women Day. TRN and Umeed, we will be there felicitating the women of the state, J&K UT. That's really great that you are felicitating women, and it's a very good step, like for TRN and for Umeed. It's really appreciating that you are encouraging women, you are celebrating this, so that like you are giving your little effort. It's little, but it's very important कि आप लोगों को समझा सको. एंड इसी तरीके से अगर हम लोग सब ऐसे करेंगे, आवर लिटिल स्टेप्स विल जस्ट आगे बढ़ते जाएंगे, एंड डेफिनेटली वी विल एम्पावर वुमेन. नॉट 100%, बट वी विल अचीव 100%. कभी तो अचीव करेंगे, कभी ना कभी तो जरूर करेंगे. एंड गॉड ब्लेस ऑल वुमेन. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.